Now see, a steady current in a metallic conductor of non-uniform cross section. तो क्रॉस सेक्शन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म. क्रॉस सेक्शन इज नॉन यूनिफॉर्म. Which quantities is constant along the conductor? Current density, electric field, drift speed. बोलो. So whenever steady current is flowing, that means current is constant. What constant? क्योंकि करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव यूज्ड अ डीसी सोर्स, सो करंट विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट. नंबर 2, current density will change. Why? Because current density is J vector का mod I by A. I is constant, but area is changing. So if area is changing, that means J will change. Number 3, what about the electric field? Electric field will change because somewhere the lines will be closer to each other and somewhere they will be spaced away from each other. So electric field will also change. What about the drift speed? It will also change. Drift speed is E tau by m. So E changes, that means drift speed will also change. Next question. Figure shows a plot of current I flowing through the cross section of a wire versus the time t. करंट और टाइम का ग्राफ दिया है. करंट और किसका? टाइम का ग्राफ. Use the plot to find the charge flowing in 10 seconds through the wire. So this is a very easy question. When you have current and time graph, current and what? ये करंट है, ये टाइम एक्सिस है, सेकंड, ये एम्पियर, ये 5 और ये 10. So we know I equal to what? dq by dt. So dq equal to I dt. So integrating both sides, dq equal to integration of what? I dt. So total charge equal to एरिया अंडर. इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? एरिया अंडर आईटी ग्राफ. एरिया अंडर व्हाट? करंट एंड टाइम ग्राफ. व्हाट इज द एरिया? सर ये एक ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया हाफ ऑफ
sum of parallel sides multiplied by height multiplied by what? Height. So sum of parallel sides क्या होगा? ये 10 और ये कितना? 5, isn't it? 5 होगा क्या? ये 5 है ना? So this length is how much? 5 है ना? और this length is how much? 10 and this length is how much? 5. तो sum of parallel sides मतलब 5 plus 10 multiplied by height मतलब कितना? Half into 15 into 5, that is 75 by 2 मतलब 37.5 कूलम. So whenever you see current time graph, charge होगा area, and area if it is a triangle, then area of triangle. If it is a trapezium, area of a trapezium. If it is a rectangle, area of a rectangle. Area of a what? Rectangle. Next question. Consider the circuit shown in figure. Find the effective resistance of the circuit and the current drawn from the battery. Current drawn from the battery. So this is also previous year question. See. अभी यहाँ पे मार्किंग करेंगे. We'll mark the voltages. It will be done by point potential method. What method? So let us mark the voltages. यहां पे कितना रे? ये 6 वोल्ट, तो ये पॉइंट भी 6 वोल्ट, ये नेगेटिव 0 है ना. यहां पे बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये भी 6, ये 0 है ना, ये भी 6 है ना. तो सर ये कितना है? ये 0, ये कितना? 0. दैट मीन्स ये 10 और 14 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये 10 और ये 10 कनेक्टेड इन सीरीज. मतलब व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड डायग्राम? ये 6 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, तो ये 6, ये 0 है ना. 30, देन 10 प्लस 10 20,
20 भी लगा हुआ है 6 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच में. 10 plus 10 20. 10 and 14 what? 24. This is also connected between what? 6 and 0. ये जो 24 लगा हुआ है 6 and 0. ये जो 20 लगा हुआ है 6 and 0. ये जो 30 लगा हुआ है 6 and 0. और बैटरी तो है ही 6 वोल्ट का बैटरी. कितना वोल्ट का बैटरी? So all connected between 6 volt and 0 volt. That means they are all connected in parallel. They are all connected in. So what is the formula for finding out R equivalent? 1 by R equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by. तो 1 by R equivalent equal to 1 by R1. R1 बोलो 30, R2 बोलो 20. ये कितना रहे? Now find out 30, 20 and 24 का LCM and tell me. 30, 20, 24 का LCM कितना? One 120 is the LCM. How much is the LCM? 120. That means, sir, 1 by R equivalent is equal to 120 is the LCM. So 34, 26 or 24, 5. That means 15 by, है ना? तो R equivalent कितना आया? 8 ohm is the R equivalent. Once you have found out R equivalent, then you can find out the current very easily. What will be the current? Current is equal to V by R equivalent. What is V? 6. What is R equivalent? 8. So current is 3 by 4 एम्पियर. तो करंट का आंसर है 3 by 4 एम्पियर एंड आर इक्विवेलेंट है 8 ओम. कितना ओम? 8 ओम. Consider two conducting wires A and B of the same diameter.
but made of different material. So we have two wires. Two wires A and B. They have different diameter. Sorry, same diameter. They have what? Same diameter. And what is different? Different material. Different material का मतलब rho is different, resistivity is different. Rho A and rho B. They are joined in series across a battery. They are joined in series across a battery. RARB. The number density of electrons in A is 1.5 times that in B. Number density of electrons. That means number of electrons per unit volume. Na. Number of electrons in A per unit volume is 1.5 times the number of electrons in what? Per unit volume in what? B. So Na equal to 1.5 times of Nb. Now we have to calculate ratio of drift velocity of electrons in wire A to that of wire B. Ratio of drift velocity निकालना है. कैसे निकालेंगे बोलो? यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वायर ए टू दैट ऑफ वायर बी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है. आई तो सेम रहेगा. क्या सेम रहेगा? दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो आई इक्वल टू एन वायर ए का एरिया वीडी ऑफ ए. वायर नंबर बी के लिए भी करंट तो सेम ही रहेगा, सीरीज में है ना. एन बी एरिया सेम रहेगा क्योंकि डायमीटर सेम है. तो एरिया सेम वीडी बी है ना. दैट मीन्स एन ए वीडी ए ई इक्वल टू एन बी ए. सो ई कैंसल्ड, ए कैंसल्ड. एन ए कितना दिया है? 1.5 टाइम्स ऑफ एन बी. वीडी ए वीडी दैट मीन्स सर एन बी. सो वीडी ए डिवाइडेड बाई वीडी बी इक्वल टू so ratio will be two is to 3. How much ratio? So this came in 2023.
नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलू क्या? Graph shows the variation of current versus voltage for a material gallium arsenide is shown in the figure. Identify the region of negative resistance and where Ohm's law is obeyed. Where Ohm's law is obeyed. Now we'll see how to identify. So this is the graph given, somewhat like this. किसके किसके बीच में ग्राफ दिया है? करंट और वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ एक दिया है. यहां पे कर्व है, फिर ऑलमोस्ट स्ट्रेट, देन कर्व, देन कर्व, देन ओके. So this is point B, this is point C, this is D, and this is what point? So identify the negative resistance region. Identify the region of negative resistance, है ना? तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? लेट अस कैलकुलेट स्लोप ऑफ IV ग्राफ. डेल्टा I बाई डेल्टा B. स्लोप मतलब टेन थीटा नहीं होता है. और टेन थीटा क्या होगा? कहीं पे भी टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस. परपेंडिकुलर में कोई चेंज मतलब किस में चेंज? करंट में. और बेस में कोई चेंज मतलब किस में चेंज? वोल्टेज में. सो डेल्टा I बाई डेल्टा V, करंट बाई वोल्टेज, 1 बाई रेजिस्टेंस. 1 बाई व्हाट? रेजिस्टेंस, है ना? सो अगर बी पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, कौन सा पॉइंट पे? इफ आई ड्रॉ ए टेंजेंट एट पॉइंट बी, एट पॉइंट व्हाट? अगर बी पॉइंट में मैंने टेंजेंट बनाया यहां पे, तो बी पॉइंट में टेंजेंट बनाने से ये एंगल लेस देन 90 आता है, ग्रेटर देन 90. तो एट बी थीटा इज लेस देन 90. थीटा इज लेस देन 90, दैट मीन्स व्हाट सर? टेन थीटा इज पॉजिटिव, है ना? टेन थीटा पॉजिटिव मतलब वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ना चाहिए, है ना? तभी तो पॉजिटिव आएगा. चेंज पॉजिटिव कब आएगा? जब ये क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. दैट मीन्स टेन थीटा पॉजिटिव मतलब ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट ऑल्सो इंक्रीजेस. तो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है ना? और रेजिस्टेंस तो 1 बाई स्लोप, और स्लोप है पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस भी यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव. बी पॉइंट में रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव. सिमिलरली सी पॉइंट में भी यू कैन सी. सी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो भी लेस देन 90 आएगा. वो भी लेस देन क्या आएगा? 90. तो सी पॉइंट में भी रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? पॉजिटिव. नाउ लेट अस कम टू डी पॉइंट. डी पॉइंट में अगर टेंजेंट बनाया तो ये जो एंगल बना वो लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है? ग्रेटर देन 90 है ना? ई पॉइंट में भी सेम होगा. मतलब डी से ई तक कहीं पे भी तुम टेंजेंट बनाओ, थीटा विल बी लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90. दैट मीन्स फ्रॉम डी टू ई थीटा इज ग्रेटर देन 90. थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब टेन थीटा नेगेटिव.
टेन थीटा नेगेटिव का मतलब होता है वोल्टेज बढ़ने से करंट कम होगा। यू कैन सी इन द ग्राफ ऑल्सो, वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट का ग्राफ नीचे आ रहा है, D2E नीचे आ रहा है ना करंट का ग्राफ। दैट मीन्स वोल्टेज इज इंक्रीजिंग, करंट इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स सर resistance will be negative, resistance will be negative in this region from D to E. So negative resistance is D to E. अभी बोला है ओम्स लॉ कहां पे वैलिड होता है? ओम्स लॉ तो तब वैलिड होगा जब वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा आता है रे? स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? ये I है, ये V है। So if it is a straight line, then Ohm's law is valid. तो B to C is the only region जहां पे ग्राफ seems to be a what line? Straight line. So B to C, from B to C, voltage by current का रेशियो और करंट बाई वोल्टेज का रेशियो विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। मतलब रेजिस्टेंस या 1 बाई रेजिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा मतलब वहां पे क्या वैलिड होगा? ओम्स लॉ वैलिड। तो ओम्स लॉ विल बी ओबेड फ्रॉम एट वेयर? B to C. Okay.
नेक्स्ट बोलू क्या? The resistance of a metal wire increases with increasing temperature on account of option A, option B, option C, option D. बोलो. The resistance of a metal wire increases with increasing temperature on account of. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस? m बाई एन स्क्वायर टाउ एल बाई तो ऑन टेम्परेचर इंक्रीज बोला था ना, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम विल what decrease as collision frequency increases. so जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा तो relaxation time will decrease. so if relaxation time will decrease then we can see R is inversely proportional to tau. Relaxation time will decrease, then resistance will be increasing. That means on increasing temperature the resistance increases on account of decrease in what? So option B is correct. Option B is what? अगर यहां पे मेटल वायर की जगह सेमीकंडक्टर होता तब क्या होता? सेमीकंडक्टर के लिए याद रख देना, टेम्परेचर बढ़ने से टाउ डिक्रीज होगा, बट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, अरे सेमीकंडक्टर में नहीं बोला था ऐसे सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन. और क्या होता है टेम्परेचर बढ़ने से बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होता है. होल मतलब खाली जगह, इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के गया है. होल को ट्रीट किया जाता है क्या चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज. तो टेम्परेचर बढ़ने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स increase. Tau will decrease, but increase of n will dominate. Decrease of what? Tau. Decrease of tau मतलब क्या? क्या टाइम? मतलब सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ने से दो पैरामीटर को हमको देखना पड़ेगा. वन इज द रिलैक्सेशन टाइम एंड द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स. तो रिलैक्सेशन टाइम तो कमेगा, बट नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज. नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज. दैट मीन्स द डोमिनेटिंग इफेक्ट विल बी द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स. नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इतना तेजी से बढ़ता है दैट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो किसका बढ़ना डोमिनेट कर रहा है? एन का बढ़ना. एन बढ़ रहा है और टी कम हो रहा है, बट एन का बढ़ना विल डोमिनेट टी का घटना. तो कौन बढ़ेगा या घटेगा? सो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ राइज इन वर्ड टेम्परेचर फॉर ए
What material? For a semiconductor material. Remember, you have to explain in such a manner. नेक्स्ट बोलो. Now do some calculations. Find the temperature at which resistance of a conductor increases by 25% of its value at 27 degrees centigrade. The temperature coefficient of resistance of conductor is given as 2 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. 2 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade. That means we have to use the relation between resistance and what? Temperature for a what? Conductor. So conductor के लिए क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. अगर टेम्परेचर को चेंज किया तो R इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा टी इज व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन व्हाट? R naught is what? Base resistance या ओरिजिनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर मान लो T नॉट है ना. एंड अल्फा इज योर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट विल वी डू? सर रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ? R डैश. तो बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस बाय 25%. मतलब R डैश इक्वल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस R नॉट. R नॉट इज व्हाट रेजिस्टेंस? ओरिजिनल और बेस रेजिस्टेंस है ना. R नॉट प्लस 25% ऑफ R नॉट. तो R डैश विल बी R नॉट प्लस 25 by 100 of R naught. So let us take R naught common. 1 plus 1 by 4. 25 by 100, 1 by 4. So R dash. R dash is how much? No value. 5 by 4 of what? R naught. 5 by 4 of what? R naught. So at which the resistance of a conductor increases by 25% of its value at what temperature? 27 डिग्री सेंटीग्रेड. 27 में जितना था उससे कितना बढ़ना है? 25%. कितना बढ़ना है? तो हम लोग बेस रेजिस्टेंस को यहां पे ले सकते हैं क्या? ये बेस रेजिस्टेंस कौन सा टेम्परेचर में है? T नॉट टेम्परेचर.
अगर टी नॉट का वैल्यू नहीं दिया है तो टी नॉट को क्या लेना है, जीरो लेना है। क्या लेना है, जीरो लेना है टी नॉट को। तो टी नॉट जब जीरो था तब रेजिस्टेंस कितना था, आर नॉट। तो यहां पे आर नॉट नहीं पकड़ते हैं इसको, इसको क्या पकड़ लेते हैं, आर पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं इसको, लेट अस टेक दिस टू बी व्हाट, और आर नॉट वन, आर नॉट वन ले लेते हैं इसको, आर नॉट वन। आर नॉट वन इज व्हाट, आर नॉट वन इज व्हाट, रेजिस्टेंस एट कितना डिग्री, 0 डिग्री या 27 डिग्री, रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 में जितना होगा वैल्यू उससे 25% बढ़ना है। जीरो में बोला है क्या, जीरो में क्या पकड़ा था, आर नॉट। तो नाम चेंज कर दो बस, इसको आर नॉट वन लिख दो, आर नॉट वन, आर नॉट वन। आर नॉट वन इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर हाउ मच, 27 डिग्री से। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा। हाउ टू फाइंड आउट अल्फा, पहले क्या करेंगे हम लोग, 27 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, 27। Oh, alpha is given. We have to find out what? We have to find out the temperature, new temperature. So we'll write पहले कहां से कहां तक, at 27 degree centigrade. What will be the expression? 27 degree centigrade में R naught 1 is equal to original resistance 1 plus alpha delta t. Delta t मतलब t, t मतलब यहां पे कितना, हाँ 27 माइनस 0, 27 माइनस, सो आर नॉट 1 कितना आया, आर नॉट इंटू 1 प्लस, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, है ना। अभी बोला है कि आर डैश होगा 25% ऑफ आर नॉट 1। सो एट एनी टेम्परेचर टी, जो हमको निकालना है, एट एनी टेम्परेचर टी क्वेश्चन मार्क, रेजिस्टेंस इज हाउ मच, कितना पकड़ा है, आर डैश, हाँ तो आर डैश विल बी अगेन व्हाट, आर डैश इक्वल टू, आर डैश इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा what t, t minus 0, that means t, that means what, so r dash का वैल्यू, r dash का वैल्यू दिया है क्या, 5/4 of r naught 1 is equal to r naught into 1 plus alpha t, है ना। तो यहां पे एक इक्वेशन आया और यहां पे एक इक्वेशन आया, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अभी 1 और 2 को क्या करने से आ जाएगा, डिवाइड, 1 और 2 को डिवाइड करने से आर नॉट और आर नॉट क्या चला जाएगा रे, कैंसिल। आर नॉट 1 और आर नॉट 1 भी क्या चला जाएगा, कैंसिल, है ना। अल्फा तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। तो 1 और 2 को डिवाइड करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर। समझ में आया ना। कभी भी रेजिस्टेंस अगर किसी अननोन टेम्परेचर 27 डिग्री या कुछ भी टेम्परेचर में बोलता है, मतलब 0 डिग्री से इतना बढ़ाया गया, क्योंकि अगर बेस टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो पहले शुरू करना है कहां से, 0 डिग्री से कैलकुलेशन। तो बेस टेम्परेचर को 0 मान लिया, बोला गया है 27 में है, जितना वैल्यू उससे 25% ज्यादा होना है। तो 27 डिग्री में कितना पकड़ लिया, आर नॉट 1। तो 27 में अगर आर नॉट 1 है तो आर नॉट 1 प्लस 25% ऑफ आर नॉट 1। नाउ वी विल यूज द इक्वेशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विथ रिस्पेक्ट टू बेस टेम्परेचर, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, again we will use the equation at any temperature T when the resistance becomes R dash. R dash मतलब 25% more than that of the value at 27 degree centigrade, than that of the value at
27 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। सो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा बोलो? 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 आर नॉट 1 कैंसिल। 1 डिवाइडेड बाई 5/4 इक्वल टू आर नॉट भी कैंसिल है ना, तो 1 प्लस 27 अल्फा बाई 1 प्लस टी अल्फा, मतलब 4/5 इक्वल टू 1 प्लस 27 अल्फा डिवाइडेड बाई, नाउ यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा इधर? 4 प्लस 4 अल्फा टी इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 प्लस 27 इंटू 5, 170 है क्या? नहीं सॉरी, 127 इंटू 5, 135 है ना। सो दैट विल बी हाउ मच? 4 अल्फा टी। और कुछ बचा क्या? अल्फा एक बचाना, इधर अल्फा एक बचाना, नहीं बचा। दैट मीन्स 4 अल्फा टी माइनस 135 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 1 है ना। नाउ अल्फा का जगह में कितना पुट करेंगे बोलो? 4 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 इंटू टी माइनस 135 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 इक्वल टू कितना? 1। यहां से टी को निकालना है। किसको निकालना है? टी। टी का वैल्यू कैसे आएगा रे? ये पोर्शन रब कर दूं क्या? ये रब कर देता हूं। ये क्वेश्चन क्यों चला जाता है? ओके, लेट मी गो टू द क्या आया था इक्वेशन? 4 इंटू 10 टू 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 टी 135 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4, 4 इंटू ओके 4 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 टी, और फिर क्या आया था? 135 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या आया था? 1। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टी फ्रॉम हियर। हाउ टू फाइंड आउट टी? 8 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 टी इक्वल टू 135 इंटू 2, 135 270, तो प्लस 270 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 है ना। दैट मीन्स टी इक्वल टू कितना? 1 प्लस 270 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 टू दावर माइनस 4 है ना। तो 0 0 विल गो कैंसिल्ड। एलसीएम कितना है? 1027 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई ओके, सो 30 कैंसिल्ड, तो 1027
0/8 बाई व्हाट 8। नाउ ये 4 से कटेगा क्या 4 2 4 5 4 5 4 5 no 4 6 4 2 8 28 2 5 6 7.5 2 5 6 7.5 that means again approximately 1824 degree centigrade 1824 that is your answer कितना होছে next now see this question the graph between resistance R and temperature T for mercury is shown in the figure explain the behavior of mercury near 4 Kelvin explain the behavior of mercury near 4 Kelvin explain the behavior of mercury near 4 Kelvin 4 केल्विन के आसपास दिस इज वेरी इजी 4 केल्विन के आसपास क्या है रे ये है ना 4 केल्विन तो 4 केल्विन के आसपास ये वाई एक्सिस है कौन सा एक्सिस है वाई एक्सिस तो 4 केल्विन के आसपास रेजिस्टेंस कितना है 0 रेजिस्टेंस कितना है अरे ग्राफ तो यहां से ही शुरू हुआ ना कितना कितना केल्विन से 4 केल्विन से तो अगर 4 केल्विन से ग्राफ शुरू हुआ है मतलब 4 केल्विन के आसपास रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम है बहुत कम मतलब कितना है इक्वल टू 0 और रेजिस्टेंस जिस टाइप ऑफ मटेरियल में 0 रहता है उसको क्या बोला जाता है सुपर कंडक्टर क्या कंडक्टर सुपर कंडक्टर और जिस टेम्परेचर में रेजिस्टेंस 0 होता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं बोला था ये टेम्परेचर एट व्हिच रेजिस्टेंस इज व्हाट 0 इज कॉल्ड व्हाट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या टेम्परेचर क्या टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर तो ये जो टीसी लिखा हुआ है दैट टीसी इज नथिंग बट टेम्परेचर एट व्हिच आर इक्वल टू कितना 0 दिस इज कॉल्ड व्हाट टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर क्रिटिकल अंडरस्टूड so you have to explain the behavior only here resistance is 0 it behaves as a superconductor
एलॉय ना तो मरकरी एलॉय अल्फा जीरो रेजिस्टेंस जीरो ना अल्फा जीरो for alloys temperature coefficient of resistance alpha is zero, so on changing the temperature resistance do not change. Here resistance is zero, not alpha zero. सब खिचड़ी कर देगा एग्जाम में. एलॉय के लिए अल्फा जीरो है अल्फा. Here resistance itself is zero. Understood or not understood? नेक्स्ट बोलू क्या? हाँ let us see next question. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? So this is the same graph that has been done. It has come multiple times. नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन जल्दी से बोल दो अभी. नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजियन कौन सा है? B2C में अगर टेंजेंट बनाया तो थीटा ग्रेटर देन 90. थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब स्लोप नेगेटिव. स्लोप नेगेटिव मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा. वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम होगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा. सो आंसर इज व्हाट? B2. सो रीजियन हो गया B2C जहां पे क्या शो करेगा? नेगेटिव रेजिस्टेंस. बी में बोलो तो रेजिस्टेंस क्या होगा एग्जैक्टली बी पॉइंट में? बी पॉइंट में रेजिस्टेंस इंफिनिटी होगा. एट बी थीटा इक्वल टू 0, टेन थीटा इक्वल टू टेन 0 है ना. टेन थीटा मतलब स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ. स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ इक्वल टू 0 मतलब 1/r 0 मतलब r 1/0 मतलब इंफिनिटी. मतलब कितना? इंफिनिटी. अंडरस्टूड?